Hello everyone, welcome to Target IES. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. So we are covering heat exchanger, and in the last lecture we have covered the types of heat exchanger. Okay, so that is also a very important lecture because in engineering services many theoretical based question on the types of heat exchanger have been already asked, so you can get those information from the last lecture. So now we are going to cover the LMTD method. Okay, so this is a very important question, and this LMTD is logarithmic mean temperature difference. Okay, so दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली जो हीट एक्सचेंजर से पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं. Okay, so let's start. First of all, in the last lecture we have seen that the temperature will vary, means the heat transfer gets from the hot fluid to the cold fluid. So, and we have also learned that there are two types. We are going to cover two types of heat exchanger. First one is parallel flow and the second one is counter flow. So let's start. What do you mean by first the parallel flow? As we have already discussed that hot and cold fluid travel in the same direction in the parallel flow, and hot and cold fluid travel in opposite direction with respect to each other in the counter flow. So let's first cover the parallel flow. In parallel flow, यहाँ से hot fluid आ रहा है from this direction with temperature, initial temperature THI. So first of all you remember this notation. Okay, I am not going to tell every time or describe it every time. So hot mixture will enter from this and goes out of with a temperature of reduced temperature of THE. Cold fluid will enter with the temperature of TCI and exit with a temperature of TC. The mass flow rate may be the same, may be different for the two liquid. When we see the temperature profile, as we have already seen that the temperature profile will be logarithmic. So the hotter fluid temperature decreases logarithmically, and the colder fluid temperature increases logarithmically. So these, the red one and the black one, is a normal curve, but in the extreme condition, that is a limiting case that we call, at the end of the heat exchanger the temperature of the hotter and colder fluid can be same, but उसके लिए जो लेंथ है, the length exactly same के लिए the length of the heat exchanger will tends to be infinite. So ये एक hypothetical case है, but yeah, अगर पूछा जाए what is the limiting case, so the temperature of hotter and colder fluid at the exit of heat exchanger can be same. Okay, so this is regarding the parallel flow. In the counter flow, we see that the temperature at the inlet and outlet condition is same as parallel flow. The mass flow rate can be different. Mass flow rate of the two fluid can be same or different. Okay, but the temperature profile here is different. There is something that we miss out. Sorry, that is not possible in the parallel flow, but it is possible in the counter flow. Let's see first how the temperature flow varies. Temperature change varies, not flow. So first of all, the temperature of the hotter fluid varies logarithmically. Similarly, the temperature of the colder fluid vary logarithmically. So in the parallel flow here, okay, we can see that the maximum temperature that the colder fluid get is equals to the outlet temperature of the hotter fluid. जो maximum temperature colder fluid का हो सकता है वो किसके बराबर हो सकता है? The outlet temperature of the hotter fluid. Okay, but in the counter flow case, this is the counter flow, we can see that in the limiting case the maximum temperature the colder fluid can achieve is equals to THI, means the inlet temperature, and we know that the inlet temperature of hotter fluid is greater than the exit temperature, right? Because the hotter fluid is losing the heat. So which one is means more efficient? ऑफ कोर्स द काउंटर फ्लो, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर कोल्डर फ्लूइड का इंक्रीज करना है. कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है? अप टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉटर फ्लूइड. सो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल फ्लो है और काउंटर फ्लो है, उन दोनों में मोस्ट एफिशिएंट इज काउंटर फ्लो. नाउ here we are going to talk about the overall heat transfer coefficient that we have already discussed in the previous lectures. यहाँ पर जो हम एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पाइप है. ओके, दिस वन इज द पाइप. वन साइड
हॉटर फ्लूइड मूव कर रहा है वन साइड, कोल्डर फ्लूइड मूव कर रहा है. लेट्स से हेयर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज H1, हेयर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन इज H2. बट जो इसका जो K है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो ट्यूब, उसको हम निगलेक्ट करते हैं. क्यों? मैंने आपको बताया था, बिकॉज L by KA, K for this material is very high and L length which is this, if it is a plate or then if it is a cylinder, then formula will change. It is very thin, so L is very small, K is large, so it tends to negligible. जो resistance हम conductive resistance जो provide कर रहा है ट्यूब, वो काफ़ी कम हो जाता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट हम सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उसी को कंसिडर करते हैं. सो इफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करने का तो 1/u इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2. यहाँ पर A1 एंड A2 का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A1 एंड A2 मीन्स जब हमने बात की थी, जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने समझाया था कि एरिया जो सिलेंडर के बाहर है और एरिया जो सिलेंडर के अंदर है डिफरेंट है, जिसके कारण जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड एंड आउटसाइड है डिफरेंट. बट यहाँ पर क्या है कि जो ट्यूब है वो बहुत थिन है, सो एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो यू भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. सो लेट्स सी, ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर है हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं. एंड डेल्टा क्यू देन क्या हो जाएगा, यू डेल्टा टी डी ए. डी ए मीन्स एक स्मॉलर सेक्शन लिया है हमने एरिया का, ठीक है. एंड डेल्टा टी यहाँ पर हॉटर माइनस कोल्डर फ्लूइड है. मतलब इस टाइप से आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी स्पेस में, किसी एक पोजीशन पे आप हीट ट्रांसफर फाइंड कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि एक आता है एक चीज़ कि डेल्टा टी इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन पैरेलल फ्लो. मीन्स डेल्टा टी अगर ज़्यादा किस में है, डेल्टा टी मोर किस में है, यहाँ पर प्रोनाउंस्ड इन पैरेलल फ्लो में है. सो इरिवर्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी अगर आप हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं. सो इफ़ ये फर्स्ट यहाँ इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है T1 एंड T2, ओके, एंड एक में T1 बिल्कुल जनरली इक्वल ही है एंड काफ़ी स्लो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, सो एंड एक में T1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T2, सो द इरिवर्सिबिलिटी रिलेटेड टू वन इज़ लेस देन टू, राइट. सो इसलिए हम बोलते हैं कि irreversibility associated with the heat transfer in parallel flow heat exchanger is greater than the irreversibility associated with the heat transfer related with in counter flow heat exchanger. Okay, so अगर हम thermodynamically देखें, so counter flow is more efficient than the parallel flow, and because of that जो ये हमने लिखा है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो पैरेलल फ्लो में ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू काउंटर फ्लो. इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स एंट्रोपी चेंज ज़्यादा है, इसलिए हम ये लिखते हैं. ओके, सो ये यहाँ पर एक जनरल हो गया. नाउ वी हैव टू डिराइव व्हाट इज मीन. फर्स्ट मीन टेम्परेचर डिफरेंस हमने देख लिया. मीन टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स अभी यहाँ पर फ्लो हो रहा है एंड एवरीवेयर द टेम्परेचर ऑफ हॉटर एंड कोल्डर फ्लूइड इज चेंजिंग, बट इन दिस फॉर्मूला Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी एम. ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं मीन टेम्परेचर डिफरेंस. व्हाट विल बी दैट, वी हैव टू डिराइव. हम कैसे फाइंड करें इसको? सो फॉर दैट वी हैव टू डिराइव समथिंग फॉर्मूला सो दैट वी कैन फाइंड दैट इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज लाइक दैट, सो ये इतना हीट ट्रांसफर होगा. ओके, हमेशा हम डायरेक्टली थर्मोमीटर लेके खड़े तो नहीं रह सकते हर एक पोजीशन पे, बिकॉज वी नो द इनलेट एंड आउटलेट और इनलेट एंड एग्जिट टेम्परेचर, पर हम हर एक बीच में तो फाइंड नहीं कर सकते. सो फॉर दैट we have to find the mean temperature difference which will depend upon these four condition, and ये काउंटर फ्लो है और पैरेलल फ्लो इस चीज़ के ऊपर, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन टेम्परेचर डिफरेंस हम फाइंड करते हैं. सिग्निफिकेंस की बात हमने ऑलरेडी कर ली. पैरामीटर्स दैट टेक्स इनटू अकाउंट द वेरिएशन ऑफ डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स by averaging the variation all along the length of the heat exchanger. Same thing that I've already told you. So we can write it as Q equals to UA delta Tm, where Q is total heat transfer, A is total heat transfer area, delta Tm is mean temperature difference, and U is overall heat transfer coefficient. So we have discussed about this, but now we are going to discuss how we are going to find this mean temperature difference. Okay, so let's start with the derivation. We have taken this parallel flow. ओके, सो ये पैरेलल फ्लो का डायग्राम है, बट लेट्स डिराइव. लेट्स डेल्टा क्यू को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज यू डेल्टा टी डी ए, वेयर डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, डी ए इज अ वेरी स्मॉल एरिया और ऑफ एन एलिमेंट, डी ए इज एन एलिमेंटल एरिया. ओके, सो इफ आई
want to find the total, this is also a fraction of heat transfer. If I have to find the total heat transfer, then I have to integrate it from inlet to exit, this equation. So Q will become UA delta Tm. So delta Tm will be the our mean temperature difference. If we integrate it, and we will get this. So delta Tm will become 1 by A inlet exit delta T dm. So this is a basic thing. Now we have to, this is a very generalized thing, right? This is a generalized derivation. You will get the condition, then you can integrate it as per that. Okay, so means this one is the integration and we have to find it this. So अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, सो डेल्टा टी एम क्या बन जाएगा हमारा 1 बाई ए, जो ये वाला है. सो ये एक जनरलाइज थिंग है, ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू स्पेसिफिक, वी हैव टू फाइंड फॉर द पैरेलल एंड काउंटर फ्लो. सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जस्ट पॉज द video and draw these two diagrams. This is very important because everything will be depend on these two diagrams now. So there is a heat exchanger. The hotter fluid comes with the temperature of THI, exit with the THE. Colder fluid enter with TCI and exit with TCE. Okay, we have taken this elemental area with a of length of elemental length of dx, and its area will be dA. Okay, and the heat transfer from this elemental area is dq. Okay, now in this small section dx, the temperature of the hotter fluid is decreased by dth, and the temperature of the colder fluid increased by dtc. This is given. Now as we have already see what is delta ti and what is delta te. Delta ti is the temperature inlet difference and delta t is the exit temperature difference. Okay, now we have to derive. First you need to draw the diagram, that is very important. Now how we can write the change in or heat transfer, how we can write the heat transfer, U delta T dA. Okay, this is the basic formula, and we know delta T is delta TH minus delta TC, means temperature difference of temperature between the hotter and colder fluid, that is the function of x, we know that. So here the condition, two condition is given. At x equals to 0, delta T equals to delta Ti. Here is the x, right? Here in this direction x will increase, here x की value 0, यहाँ पर x value is L. So now we can we see that at x equals to 0, delta T equals to delta T, that is inlet delta TH minus TCI हो जाएगा, and x equals to L पे delta T की value THE minus TCE हो जाएगा. Okay, we can see that two things. So now we can when we will differentiate this, d delta t, जो delta t जो है delta t equals to th minus tc, when we differentiate it, it will become d dth minus dtc, sorry dth minus dtc. इसको हमने differentiate किया. Now we, जब मैं एंथैल्पी फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ q equals to delta h, sorry dq equals to delta h, and delta h equals to mc dt. So when we write it in this condition, so dq will be minus mh cph dth. ये हॉटर फ्लूइड के लिए, हॉटर फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया. सिमिलरली फॉर द कोल्डर फ्लूइड mcpc dtc. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो आप प्लीज जब भी लेक्चर देखें तो लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लें. नाउ अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ dth की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dq अपॉन m डॉट cph. ये हॉटर फ्लूइड का हीट कैपेसिटी नीचे आ जाएगा. नाउ पुट दिस एट द प्लेस ऑफ दिस dth, एंड सिमिलरली हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे. सो ये इक्वेशन बन जाएगी. टेक योर टाइम एंड ऑब्जर्व दिस व्हाट आई हैव मीन्स एक्सप्लेन. आप, ये काफ़ी इजी चीज़ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्सटीट्यूशन है. अगर आपने एक अच्छे से पेज पे इसको लिख लिया है तो बहुत ईजी है समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मैंने एक ही बार किया था, मुझे आज तक याद है, मैं पता नहीं कितने दिनों बाद पढ़ रहा हूँ. नाउ इसमें से हमने ये dq को कॉमन निकाल लिया, dq, एंड हमने ये इक्वेशन लिख दी और माइनस साइन भी बाहर आ गया. नाउ dq को हमने यहाँ पर क्या बोला था, dq का अगर आप देखें तो u डेल्टा टी dA, तो मैंने dq की जगह पे पुट कर दिया u डेल्टा टी, एंड एरिया क्या होता है, एरिया जो हमारा है b को हमने विड्थ मान लिया, एंड विड्थ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, एंड dx तो हमारा एलिमेंटल है, सो एरिया आ गया, एलिमेंटल है ना यहाँ पर,
यहाँ पर बी इक्वल टू विड्थ दिया हुआ है एंड डी एक्स जो है हमारा इसका एलिमेंटल है, तो एरिया आ गया उस एलिमेंट का। नाउ यहाँ पर है इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है, डेल्टा टी एक साइड आ गया एंड यू बी 1/m.cph प्लस 1/m.cpc dx। व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, dx का इंटीग्रेशन l हो जाएगा इनलेट टू एग्जिट, क्योंकि l लेंथ है, एंड दिस इज माइनस डी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। सो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, ओके, माइनस साइन के कारण। सो ये इंटीग्रेशन होगा, करके देख लीजिए आप, ओके। एंड यहाँ पर b इक्वल्स टू l इज द टोटल एरिया। सो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर टोटल एरिया लिख सकता हूँ। नाउ वी नो दैट टोटल हीट ट्रांसफर अगर मैं लिखना चाहूँ, टोटल हीट ट्रांसफर Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू m.cph एंड इनलेट माइनस आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉटर फ्लूइड। सिमिलरली m.cpc Tc माइनस Tci, ये टोटल हीट ट्रांसफर रेट अगर मैं एंथैल्पी के फॉर्म में लिखूँ, और यहाँ पर से मैं फिर m.cph एंड m.cpc की वैल्यू निकाल सकता हूँ ये, एंड ये जो दो वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा क्योंकि यहाँ पर m.cph एंड m.cpc है। सो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जस्ट पुट इट, यू विल फाइंड दिस। और व्हेन यू विल सॉल्व दिस मीन्स यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, हमने डेल्टा टी आई क्या डिफाइन किया था पैरेलल फ्लो के लिए, दैट इज टी एच आई माइनस टी सी, एंड डेल्टा टी क्या डिफाइन किया था, टी एच ई माइनस टी सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टी एच आई माइनस टी सी एंड बीच में माइनस साइन करेंगे तो ये रीअरेंजमेंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो हम न्यूमरेटर को रीअरेंज कर सकते हैं। सो इस फॉर्म में आ जाएगा, एंड यहाँ से मैं Q इस साइड लूँगा तो ये फॉर्म आ जाएगा, Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई अपॉन एल एन डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, जस्ट इसको एज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको बहुत, और लिखने की आदत डालिए। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, देन राइट व्हाट इज गिवन, देन राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड, देन स्टार्ट विथ वन स्टेप बाय वन स्टेप। क्योंकि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज, IRMS, DRDO, इसरो, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनको डेरिवेशन आना चाहिए। गेट में डेरिवेशन नहीं आना चाहिए, गेट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद हो सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ यू कंपेयर इट विथ दिस फॉर्मूला Q U A डेल्टा TM। ये हमारा यहाँ पर हमने बोला था दिस इज मीन टेम्परेचर डिफरेंस, एंड वी कॉल्ड इट एज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज यहाँ पर ln आ जाता है, ओके। सो यहाँ से आता है कि डेल्टा TM इज डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE अपॉन ln डेल्टा TI बाई TE। तो ये चीज़ें यहाँ पर होगी और इसी को हम LMTD बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। नाउ सिमिलरली वी कैन डिराइव फॉर द काउंटर फ्लो, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, अगर आपको डेरिवेशन याद भी नहीं है तो हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर जो डेल्टा TI हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था हीट एक्सचेंजर के, डेल्टा TI होता है टेम्परेचर, यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉटर फ्लूइड, इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉटर फ्लूइड। और इस साइड कुछ भी हो सकता है, इस साइड आपका एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्डर फ्लूइड हो सकता है और इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्डर फ्लूइड हो सकता है, डिपेंड कि पैरेलल है, depends on that heat exchanger is parallel or counter flow, okay. So in the counter flow heat exchanger, delta TI is THI minus TC and delta TE is THE minus TCI. So यहाँ पर जो counter flow है, for the counter flow LMTD will be remain, the formula will remain same, delta TI minus delta TE upon ln delta TI delta T, but the definition of delta TI and delta T will change for the counter flow and the parallel flow. So you have to just remember this definition, the definition of delta TI and delta TE, the inlet temperature difference and exit temperature difference, okay. So now we will start with the question. First just you try to solve this. The inlet temperature of hotter fluid is 80 degrees Celsius and exit temperature is 55 degrees Celsius. Inlet temperature of colder fluid is 30 degrees Celsius and outlet temperature is 45 degrees Celsius, and their heat capacity is same. So heat capacity same है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, and heat capacity same नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, because sorry heat capacity will not be same. अगर मैं heat capacity का relation find करना चाहूँ तो भी मैं find कर सकता हूँ, कैसे? We know that m dot Cp of H equals to delta TH, delta TH and m dot CPC into delta TC. आप डेल्टा TH एंड डेल्टा TC की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि आई थिंक यहाँ पर आएगा 25 एंड यहाँ पे आएगा 15 एंड हेयर m डॉट CPC m डॉट CPH। अब यहाँ से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं,
कर सकते हैं दैट एम डॉट सी पी एच अपॉन एम डॉट सी पी सी का जो रेशियो है वो रेशियो आएगा 15/25, दैट इज 3/5 का रेशियो आएगा. ओके, सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें हमें क्वेश्चन में LMTD फाइंड करना है. सो हाउ वी विल फाइंड द LMTD? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैनी स्टूडेंट do not draw this and they start with this directly the formula. So that is your first and the most important mistake, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कभी parallel flow या counter flow है. So first read the question, what is it, is parallel or counter flow? If parallel, just draw this diagram and then put these values of the temperature. If it is counter flow, then draw this diagram and put the values of the temperature. Simple, right? So now LMTD formula, we know that delta Ti minus delta T is ln delta Ti by delta Te. Now delta Te, for the how you will find the delta Te, it depends upon from where the hotter fluid enters. जहाँ से hotter fluid enter कर रहा है वो होता है हमारा inlet temperature, inlet delta Ti, and जो हमारा exit कर रहा है, ये यहाँ पर delta Ti होगा, जहाँ से hotter fluid exit कर रहा है वो एग्जिट टेम्परेचर है डेल्टा TE. सो इनलेट टेम्परेचर जो है हॉटर फ्लूइड का डेल्टा TI 80 माइनस देन यहाँ 30 है, दिस इज 30. सो 30 इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा TE जो है हमारा वो यहाँ पर है. सो 55 माइनस 45 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ LMTD विल बी 50 माइनस 10 बाय ln 50/10. तो यहाँ से आप फाइंड करें. सो 24.85 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज फॉर द पैरेलल फ्लो. सिमिलरली फाइंड फॉर द काउंटर फ्लो. ओके, सो फॉर द काउंटर फ्लो यहाँ पर ये डेल्टा TI नाउ देखिए डेल्टा TI यहाँ पर क्या था 80 माइनस 30, यहाँ पर है 80 माइनस 45 एंड उसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर डेल्टा TE अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 55 माइनस 45 है, यहाँ पर 55 माइनस 30 है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन यू विल फाइंड द LMTD यू विल गेट 29.72 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर द सेम temperature at the inlet and outlet of the colder and hotter fluid, the LMTD of the parallel flow is less than LMTD of the counter flow. So we can say that कि ये होता है and generally होता है हर जगह पे. Okay, this rule will follow. So ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. So for the same inlet and exit temperature of both hot and cold fluid used in parallel flow and counter flow heat exchanger, the LMTD of counter flow heat exchanger is greater than that of parallel flow. Because of that is the reason why counter flow heat exchanger, if we can say that UA delta Tm equals to Q, and for the same heat transfer अगर हम देखें the delta Tm, if you want to, Q is constant and U is constant. Okay, for the parallel flow and the counter flow. So and delta Tm, we know that delta Tm of counter flow is greater than delta Tm of parallel flow. So we can say that area of counter flow is less than area of parallel flow, right? इस फॉर्मूले से Q हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पर U सेम है. सो राइट हैंड साइड में जिसका डेल्टा Tm बड़ा है उसका एरिया छोटा है, जिसका एरिया बड़ा है उसका डेल्टा Tm छोटा है. सो वी कैन से दैट counter flow heat exchanger occupy lesser heat transfer area than parallel flow heat exchanger for same heat transfer required in both the cases. So ये चीज़ है, इसलिए हम generally counter flow heat exchanger prefer करते हैं. Okay, now there is also a type of heat exchanger that is cross flow. So cross flow का जो LMTD होता है that is LMTD of counter flow into F. ये हम फाइंड करते हैं, हम उसके लिए अलग से डिराइव नहीं करते हैं. देयर इज अ रिलेशन डायरेक्ट. ओके, एंड वेयर एफ इज करेक्शन फैक्टर एंड विच इज लेस देन 1. सो वी कैन से दैट LMTD ऑफ क्रॉस फ्लो इज लेस देन LMTD ऑफ काउंटर फ्लो. एंड अगर सारे ऑल फोर टेम्परेचर्स आर सेम देन LMTD ऑफ काउंटर फ्लो इज ग्रेटर देन क्रॉस फ्लो इज ग्रेटर देन पैरेलल फ्लो. ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है. ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन. In this question, the inlet temperature of colder and exit fluid is given, and similarly the inlet temperature of hotter fluid is given, but exit temperature is not given. Here mass of the colder fluid and hotter fluid is given, and it is written that it is a parallel flow and water is flowing from both side, hotter and colder, and its specific heat is 4.186 kilojoule per kg. Now we have to find the LMTD. Okay, for LMTD we know that
we know we have to know all the 4 temperature, but one temperature is not given. So first we have to find that temperature. So as we know, delta TH, the enthalpy change of hotter fluid, is equal to enthalpy change of colder fluid. So here, whose enthalpy change by what, we have to find. So both the enthalpy will same, and how we write the enthalpy, m dot c delta T, change in enthalpy is mc delta T. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉटर एंड कोल्डर फ्लूइड का C सेम है, सो C विल गेट कैंसल्ड, एंड जो हॉटर फ्लूइड का H है वो है 20 kg per second, सो वी हैव रिटन 20 kg, and here the temperature difference is 56 minus THE. Similarly for the colder fluid, the mass is 15 kg per second and temperature difference is this. When you will solve that, you will get that THE. THE means that exit temperature of hotter fluid is 39.5 degree Celsius. Now अगर यहाँ पर पैरेलल फ्लो की जगह पर काउंटर फ्लो होता, इफ काउंटर फ्लो इज हेयर, then also up to this step it will remain same. Okay, the exit temperature will remain same 39.5 degree Celsius, क्योंकि यहाँ पर already हम hotter fluid या colder fluid, this fundamental will remain same, that the change in enthalpy of hotter fluid is equals to change in enthalpy of colder fluid. So now we have to take into the consideration that which type of heat exchanger we are using. So we are using parallel flow heat exchanger. First of all, you draw this, write this side hot, write this side cold. Okay, now temperature, write the temperatures. Now LMTD is delta T minus delta Ti upon ln delta Te by delta Ti. So delta Te, delta T means exit is 39.5 minus 37, 2.5 degrees Celsius. Delta Ti is 56 minus 15, 41 degrees Celsius. Then you will find the LMTD which is 13.76 degrees Celsius. Okay, so ये है. अगर यहाँ पर हीट ट्रांसफर क्यों पूछ दिया होता तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो तो डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा m डॉट सी डेल्टा टी से. Okay, now there is two special cases in the heat exchanger, so that is also very important. So means everything is important if you are preparing for the gate and if you are preparing for the engineering services. So you have to focus on the key area, like heat exchanger in heat transfer is an easy topic, so you can't miss this. क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स भी हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स तो ऑलरेडी डिफिकल्ट है, तो आपको कम चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे अगर मेंस में या घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की थ्योरी में. बट जो इजी टॉपिक्स हैं उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं. जस्ट टॉपिक लाइक हीट एक्सचेंजर इज कंपेरेटिवली ईजी अदर टॉपिक्स से, इससे भी ईजी टॉपिक हैं, बट ये ईजी है. यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ जाते हैं मेंस में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो आप मिस नहीं कर सकते हैं. ओके, सो we are going to discuss about the special cases. Okay, so special cases दो हैं. पहला केस देखते हैं. केस 1, one fluid is under phase change. What will happen if one fluid is under phase change? Okay, and phase change कहाँ होता है? कंडेंसर में होता है, एवापोरेटर में होता है, जहाँ पर स्टीम जनरेटर होता है. So अगर हम कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर में क्या होगा कि कंडेंसर में हॉटर फ्लूइड विल गेट कंडेंस्ड. सो हॉटर कंडेंसिंग के टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, राइट. यहाँ पर फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. एट 100 डिग्री सेल्सियस वी कैन हैव वाटर एंड वी कैन हैव वेपर एंड इन बिटवीन दैट ऑल्सो. सो इन दोनों का मिक्सचर. सो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट रहेगी, बट द कोल्डर फ्लूइड विल एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट, आफ्टर दैट ओनली द हॉटर फ्लूइड विल गेट कंडेंस. सो इस टाइप का. सिमिलरली अगर हम काउंटर फ्लो में देखें तो काउंटर फ्लो में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, ये सेम होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा. तो यहां से एक चीज हमें पता चलता है कि LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो को हम ऐसे भी लिखते हैं, पैरेलल फ्लो इज इक्वल्स टू LMTD ऑफ काउंटर फ्लो. ओके, सो ये जब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे तो सेम है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ फेज चेंज LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो इज इक्वल्स टू LMTD ऑफ काउंटर फ्लो. और हम तभी ये बोल सकते हैं कि LMTD ऑफ क्रॉस फ्लो इज ऑल्सो सेम, क्योंकि क्रॉस फ्लो इन दोनों के बीच का ही है. सो अगर दो एक्सट्रीम कंडीशन सेम है तो बीच वाला भी तो सेम ही होगा. सो ये चीज़ आ गई. अब आपको एक टास्क है कि स्टीम, ये तो हो गया स्टीम कंडेंसर का डायग्राम, स्टीम जनरेटर का डायग्राम कैसे होगा, वीडियो पॉज करें एंड बनाएं. सो नाउ आई थिंक यू हैव मेड दिस. मैं सिर्फ पैरेलल फ्लो के लिए बना रहा हूँ, पैरेलल फ्लो के लिए.
सो यहाँ पर हमने क्या बोला, स्टीम जनरेटर। तो स्टीम जनरेटर कहाँ से होता है, टेम्परेचर, कोई बॉडी है लोअर टेम्परेचर, उससे स्टीम जनरेट करेंगे। सो उसकी लाइन स्ट्रेट आ गई। अब इसको हीट कहाँ से मिला, किसी हॉटर फ्लूइड से, सो वो डिक्रीज कर गया। ओके, सो ये जो है ये हॉटर फ्लूइड है एंड ये बॉइलिंग वाटर है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सो सिमिलरली अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो इस साइड से रहेगा, ये इधर आएगा, ये काउंटर फ्लो हो गया, ये पैरेलल फ्लो, ये काउंटर फ्लो, एंड LMTD ऑफ पैरेलल इज इक्वल्स टू LMTD ऑफ क्रॉस फ्लो एंड काउंटर फ्लो। ये हो गया यहाँ पर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आते हैं। यू डू नॉट हैव टू यूज़ द LMTD फार्मूला, मीन्स यू हैव टू यूज़ द LMTD फार्मूला, बट वहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, चाहे काउंटर फ्लो हो या पैरेलल फ्लो हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए सेम है। नाउ the special case 2, second special case, what will happen if both fluid have equal capacity rate in a counter flow heat exchanger? See, first of all counter flow heat exchanger होना चाहिए and their heat capacity जो रेट है, हीट कैपेसिटी रेट m.c वो सेम है, तब क्या होगा? तो लेट्स सी, अगर यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट फंडा है, फंडामेंटल है, इज दैट कि जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कोल्डर फ्लूइड इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ हॉटर फ्लूइड। सो यहाँ पर जब हम लिखते हैं m.c डेल्टा टी, सो m.c तो दोनों का सेम है, तो दोनों कट हो गए। ओके, एंड जो डेल्टा टी है उसको मैं लिख सकता हूँ फॉर कोल्डर फ्लूइड TCE माइनस TCI, एंड हॉटर फ्लूइड के लिए THI माइनस THE। नाउ अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा, सो आई विल गेट दिस THE माइनस TCI अपॉन THI माइनस TC, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ इन दोनों को। ओके, इसको रीअरेंज करने पर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा TE है एग्जिट एंड डेल्टा TI जो हम LMTD में यूज़ करते हैं, राइट, वो दोनों इक्वल हैं फॉर काउंटर फ्लो। दिस इज फॉर काउंटर फ्लो, दोनों इक्वल हैं। अगर मैं LMTD में उनकी वैल्यू पुट करूँ तो पहला तो न्यूमरेटर जीरो होगा क्योंकि इक्वल है, एंड ln लॉगरिथमिक 1 की वैल्यू भी जीरो होती है क्योंकि डेल्टा TI बाई डेल्टा TE की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इट इज नाउ द कंडीशन इज 0/0। सो अगर आपने मैथ्स अभी तक कंप्लीट किया होगा, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एल हॉपिटल रूल। ओके, एल हॉपिटल रूल जब हम यहाँ यूज़ करते हैं, सो वी गेट दैट LMTD ऑफ काउंटर फ्लो इज इक्वल्स टू डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE। सो यहाँ पर जब कैपेसिटी रेट सेम है, अगर इसके लिए हम डायग्राम बनाना चाहें, ओके, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, इसके लिए डायग्राम इस टाइप से बनता है। ओके, यहाँ पर जो डेल्टा TI है, सॉरी, यहाँ पर जो डेल्टा TI है मतलब ये हॉटर फ्लूइड है एंड ये कोल्डर फ्लूइड है, और यहाँ पर जो डेल्टा T एग्जिट है, एग्जिट TI एंड TE डिपेंड्स अपॉन द हॉटर फ्लूइड डायरेक्शन, राइट, वो दोनों सेम है, डेल्टा TI इक्वल्स टू डेल्टा TE, सॉरी डेल्टा T। सो ये जो बीच में है डेल्टा T वो भी इनके इक्वल है। ओके, एंड ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड काउंटर फ्लो heat exchanger. So please remember this name. Sometime in the question they do not write that this is counter flow or not, but they can on the place of counter flow they can write balanced heat exchanger. Balanced heat exchanger हमेशा counter flow में होता है। ओके, सो ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया, एंड ये जो हीट एक्सचेंजर का टॉपिक है यहाँ पर ये लेक्चर वीडियो खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर बाय द LMTD मेथड, तो उस एंड डिज़ाइन बाय द NTU मेथड, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड। सो ये जो दो टॉपिक हैं ये बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से छोटे क्वेश्चन तो आते हैं पर बड़े क्वेश्चन जो 20-20 मार्क्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो तब तक आप अच्छे से पढ़िए एंड आराम कीजिए एंड पढ़ते रहिए बस। बाय।